Hello and welcome all of you to another special podcast on Bol Dada Bol, the gentleman whom you can all see, one and only living legend, Subroto Spiderman Paul. Subroto, thank you for joining us once again. Thank you, Dada. Namaskar. Good morning. The reason viewers, fans and followers may be a bit confused क्योंकि कुछ दिन पहले सुब्रतो पॉल हम लोग के इस what do you say बोल दादा बोल podcast पे आया था, which was a very special podcast. इतनी जल्दी, why repeat of Subroto? The main reason why it is needed to let you know, because India are to play Australia very soon in the AFC Asian Cup, and whenever we speak about Australia, two gentlemen, the great Sir Neville D'Souza and Subroto Paul. Neville sir is no more, rest in peace, and Subroto's name obviously crop up. We speak about his performance हर जगह में, मीडिया हो, फैंस हो, कोचेस हो, प्लेयर्स हो, हम अपना अपना ओपिनियन बना लेते हैं, बट कभी क्या कोई सुब्रोतो के माइंड पे जाके झांक मार के सुना या समझा कि उस समय उस मैच का बिल्डअप क्या था? क्योंकि उस मैच इंटरनेशनल लेवल पे रीसेंट टाइम्स पे मेरे हिसाब से कोई भी इंडियन फुटबॉलर का उतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, डिस्पाइट football being a team sport. So that's the reason Subroto is here. We want this video to be a reference kind of a thing to get into the mindset of a player, एक सुपरस्टार जो कि एक सुपर परफॉर्मेंस दिया था जहां पे उसको स्पाइडरमैन की आख्या मिला था. Please and do listen to this totally carefully. It needs to be documented. Subroto, coming to the AFC Asian Cup, और आज हम सिर्फ AFC Asian Cup ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, साउथ कोरिया के बारे में ही हम लोग बात करेंगे आपके साथ. When we first drew Australia in the first match, draw आया, what was your initial reaction and that of the team? Dada is very honest. Reaction was very normal because I think I am going to play another match, and my first target was I have to stay fit and I have to play all the 3 matches of group Australia, Bahrain and South Korea. This is my first reaction. But then I know Australia is superpower of our continent cup, but I always wants to dream play against big teams, and my dream was I should play against Brazil, Argentina. So Australia is like another match only. So I think that way. Australia, another match, Subroto bol raha hai. The Australian squad, I have it in front of me. Mark Schwarzer, Fulham, the goalkeeper. Lucas Neal was playing for Galatasaray at that time. David Carney for Blackpool. Tim Cahill, the great Tim Cahill for Everton. Gold Coast United, Jason Kalina. Blackburn Rovers में Brett Emerton खेल रहा था. Middlesbrough में Scott McDonald. Harry Cavill, Galatasaray, AEK Athens was Nathan Burns. Liverpool पे उस समय just start किए थे. Brad Jones, the goalkeeper who didn't play. Leeds United, Neil Kilkenny. So it was a kind of a superstar, the golden generation of the Socceroos. जो सुब्रोतो बोल रहे just another team, but that was the team. Bob, कुछ बोले थे? Bob sir, Bob Houghton, did you say anything specifically to you regarding the group, regarding Australia? He's our main inspiration. We play for him. For us, he's a god. Like what any player can give everything for Bob Houghton. So Bob always say to me, he called me son, I want you in the team. You should play all the 3 matches. You have to stay fit and come. You play all 3 matches, and I know if you stay, I don't need any goalkeepers. So try to stay fit, and I want you all 3 matches. जो build up to the Asian Cup हो रहा था, players were getting injured, picking up unfortunate injuries. Mr. Bob Houghton, the coach at that time, आके आपको एक बार शायद बोला था कि आपको जरूरत पड़े तो आप skip कर सकते हो ऐसे practice session को. Don't get injured. I can't afford to have you injured out there. No, Bob always बहुत काम कोच था. वो हमेशा बोलता था कि प्रैक्टिस हमेशा सेफ करके करना है क्योंकि उसमें इंजरी नहीं होना है. बट मेरा फिलोसॉफी थोड़ा डिफरेंट था. आई ट्रेन लाइक दिस इज माई लास्ट ट्रेनिंग. जब मैं ट्रेनिंग पे जाता था यही बोलता था कि ये मेरा शायद लास्ट ट्रेनिंग हो, तो आई गिव माई बेस्ट. सो बॉब ऑलवेज यही बोलता था कि अगर सुब्रोतो स्क्वाड में है तो आई डोंट नीड एनी अदर गोलकीपर. आई कैन गो विथ यू एंड आवर गोलकीपर कोच ऑल्सो. तो ये तो होता नहीं है जनरली, बट स्टिल उसका बहुत फेथ था मेरे ऊपर.
और उसका जो ट्रस्ट और फेथ था वो मैं उसका बात पे उसको जो ट्रस्ट था वो मैं फुलफिल कर पाता हमेशा, तो इसीलिए मैं उसको लाइक करता था और वो मुझे फर्स्ट लेने चांस देता। The love and respect for Bob Houghton among all the players, even now, 12 साल हो गया, Bob Houghton, 13 साल हो गया, is not associated with Indian football anymore. But whenever you speak about Bob Houghton to any one of his wards, any of his wards, the only thing that comes out is immense respect. Thank you, Bob sir, for all your contribution and help for the betterment and development of Indian football. सुब्रत, उस दिन मॉर्निंग की बात करें, मॉर्निंग का शेड्यूल क्या था आपका जो ऑस्ट्रेलिया दादा मैच था? इज जनरल लाइक कभी भी मैच होता है तो मैच डे पे मॉर्निंग पे मैं सुबह वॉकिंग, लिटिल लाइट स्ट्रेचिंग, लाइट जिम हमेशा करता हूँ फॉर एवरी मैच। इट्स नॉट ओनली फॉर द इंटरनेशनल मैच, फॉर क्लब मैचेस आल्सो। व्हेन आई स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल आई यूज्ड टू डू दैट फ्रॉम TFA days. So that day also same. I went for walk, myself and Gurpreet going for walk. Next to our hotel there's a lake. We walking next to the lake and went to the gym. And when we are entering the gym, see full Australia team inside the gym, and they are doing power training, like heavy power training with 2-3 repetition. And I learned from them that in match day, because in 2011, now 13 years back, football science is not like today's. बट ऑस्ट्रेलियन टीम उस टाइम में बहुत आगे था क्योंकि वो लोग वर्ल्ड कप खेल के आया था। तो ये शायद फुटबॉल का अभी का दिन में सबको पता है कि मैच डे पे मॉर्निंग पे हेवी ट्रेनिंग करना चाहिए, इसलिए रेपिटेशन लाइक 2-3 रेपिटेशन विद हेवी वेट्स फॉर फिट योर बॉडी। सो 12-13 साल पहले ऑस्ट्रेलिया टीम वो करता था, तो मतलब वो लोग कितना आगे था आपको पता है, आप समझ सकते हो। तो मैं भी उधर जाके सीखा, तो उसके बाद मैं भी ट्राई करता था कि जिम में जाके थोड़ा हेवी रेपिटेशन या हेवी वेट में स्मॉल रेपिटेशन करना, 2-3 रेपिटेशन विद हेवी वेट्स, और ये मेरा नॉर्मल रूटीन है। बट उसके बाद थोड़ा मैं चेंज किया था अपने आप को मैच डे पे शेड्यूल, बट इट हेल्प्स। तो जब आप जिम में पहुंचे, मीन्स ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से कोई बातचीत हुआ था जो वो लोग कर रहे थे? वेयर देयर ग्लांसेस एक्सचेंज्ड? नहीं नहीं, जब हम लोग जिम में, मैं और गुरप्रीत जिम में गया था, तो वो लोग अपना जैसा जिम कर रहा था, हम लोग भी, और मैं और गुरप्रीत भी थोड़ा हल्का जिम करके जल्दी निकल आए कि वो लोग फुल टीम था, तो उन लोगों का टाइम थोड़ा ज्यादा था। बट मैं 10-15 मिनट्स में अपना सेशन खत्म करके वापस आ गया था। डिस्क्राइब गुरप्रीत एट दैट एज, बट आपको बताइए बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि ऑस्ट्रेलियन टीम हम लोग मेरे को और गुरप्रीत को देख के कुछ खराब बिहेवियर किया, बट ऐसे नॉर्मली जस्ट हेलो हाय तो हुआ था, बट ऐसा बहुत डीपली कुछ नहीं था। डिस्क्राइब गुरप्रीत ऑफ दैट एज। इट वाज अ डिफरेंट गुरप्रीत सिंह संधू, आपका रूममेट था राइट उस टूर्नामेंट पे? यस, वो गुरप्रीत मेरा रूममेट था। और दादा आज से 12-13 साल पहले और का बात है, मेरे को सभी याद है, बट आज का दिन के साथ गुरप्रीत का कंपेयर करेगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। बट उस टाइम में गुरप्रीत हार्ड वर्क, एक छोटा बच्चा लड़का था, वो वेरी हार्ड वर्किंग, ऑलवेज वांट्स टू लर्न एंड ऑनेस्ट। बट उसका वो ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग आज उसको कहाँ पे पहुंचाया, एंड ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोलकीपर ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज 3 एशिया कप खेल रहे हैं वो, ये आज का है 13 को उसका 3rd एशिया कप होगा। एंड आई विश कि वो फिट रहे कि पूरा 3 मैच खेले और आगे भी अचीव करे, क्योंकि गुरप्रीत का भी एज भी 30 के आसपास ही होगा। तो दिस इज द राइट एज फॉर द गोलकीपर टू परफॉर्म। तो आई थिंक ये एशिया कप में गुरप्रीत इंडिया का सबसे वैल्यूएबल प्लेयर है मेरे लिए, क्योंकि उसके हाथ पकड़ के इंडिया आगे जाने का चांसेस है। और डोंट अफ्रेड टू ड्रीम बिग, वी कैन क्वालिफाई फ्रॉम दिस ग्रुप। डोंट अफ्रेड टू ड्रीम बिग, वी कैन क्वालिफाई फ्रॉम दिस ग्रुप, सुब्रतो बोल रहे। मॉर्निंग हो गया, प्री मैच रिचुअल्स हो गया, इन द टनल बोथ टीम्स वॉकआउट कर रहा है। उस समय का टनल का इंडियन टीम का मूड क्या था? मीन्स
कुछ बातचीत, हाउ आर यू पीपल एनकरेजिंग ईच अदर? वो ड्रीम सपना था कि हम 27 साल बाद एशियन कप खेल रहे हैं, 2 साल की प्रिपरेशन लेके, 1.5 साल की प्रिपरेशन लेके पहुंचे हैं दोहा। नहीं, ये टूर्नामेंट हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा था, क्योंकि आज हम लोग एशिया कप खेल रहे हैं बिकॉज नाउ डेज इंडिया इज इम्प्रूव लॉट, क्योंकि हम लोग का इंडिया टीम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल मैचेस मिलता है एवरी इंटरनेशनल डेट पे। उस टाइम में इतना फॉर्मल नहीं था। हम लोग बॉक्सर बहुत फाइट करके हम लोग को 1.5 ईयर एक साथ रख के एशिया कप खेलने के लिए लेके गया था। और एशिया कप इज समथिंग डिफरेंट फॉर अस। हम लोग उधर गए थे दोहा में कि एंजॉय करने के लिए। सब लड़का बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था। हम लोग का एक ही थोड़ा ग्लिच था कि हम लोग को बहुत सारे प्लेयर का इंजरीज होने लगा था, क्योंकि ट्रेनिंग हो सकता है इसका मैच का टूर्नामेंट नजदीक आ रहा है, टेंशन में हो या एक्साइटमेंट में हो। बट कुछ कुछ मेन प्लेयर्स जैसे बाइचुंग भाई, रेनेडी भाई, एनपी प्रदीप का भी था, थोड़ा सा इंजरी था, बट स्टिल ही प्लेड। सबका भी छोटा छोटा इंजरी होने वाला था। तो हम लोग टनल में समथिंग डिफरेंट था। बट आई कांट टेल यू दैट the excitement or experience that Australian team was, they are not rude, they are also respective. They next to us, and they, if eye contact, they say hello, hi, good luck, the natural. But our player, I can feel the moment the players are waiting for that, and everyone in our team. And leadership of Climax Lawrence, we line up, we are waiting for the match का whistle कब होगा। सब उसके लिए वेट कर रहा था टनल में कि जल्दी मैच, कितना जल्दी मैच शुरू होगा। जब ग्राउंड में पहुंचा, टनल करके देखा, बहुत सारे सपोर्टर था हम लोग का, नॉट ह्यूज बट बहुत सारा सपोर्टर था अपना इंडिया टीम का, और ऑसीज का भी था। ऑस्ट्रेलिया टीम के बहुत सारे सपोर्टर थे। बट वी आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, दैट व्हेन व्हिसल बजेगा और हम लोग खेलेंगे। क्योंकि आफ्टर 24 ईयर्स एशिया कप और उसका व्हिसल बजेगा और हम लोग उस टीम का पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। हम लोग 140 करोड़ पीपल में से 11 पार्टिसिपेट करेंगे एशिया कप में आफ्टर 24 ईयर्स। इज समथिंग डिफरेंट बिग। और बॉक्सर हम लोग का माइंड ऐसा ही कर दिया था ना कि रिजल्ट, यू डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, यू जस्ट गो परफॉर्म एंड एंजॉय द गेम। दैट इज आवर गोल, दैट इज आवर मोटो, बस दैट्स इट। एंड वी रियली एंजॉय। व्हेन आई रिमेम्बर दैट डेज, आई फील I laugh and feel very good. रोंगटे खड़े करने वाले सब कहानियां हैं। एक बात बताइए सुब्रतो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्यादा मैचेस, ऑब्वियसली क्रिकेट में 2 पावर हाउसेस है। मैं क्रिकेट का जिक्र इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि क्रिकेट में जब भी होता है स्लेजिंग होता है ऑन द फील्ड। हाँ, ये सभी लोग जानते हैं। तो उस जब मैच शुरू हुआ था, एंड द ऑजीज, यही बोला जाता है, दे प्लेड द मैच इन दैट मैनर। उसके बाद ऑफ द फील्ड दे आर एब्सोल्युटली जेंटलमैन। तो ड्यूरिंग द मैच कोई स्लेजिंग चल रहा था, कोई बैंटर ऑस्ट्रेलियन की तरफ से आ रहा था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बट वी आर एंजॉयिंग एंड दे आर आल्सो एंजॉयिंग। बट हाउ कुड आई से दैट after every catch the ball, Team Kahil is coming more, maybe in second half most of the time when I save the ball, and even said in first half also, "Are mate, you are missing my hat trick." And they are very friendly. If I fall down, they give hand. They give their hand. We stand and again start playing. But what I feel in that match, they are not expecting that how we play. Their thing is maybe the result is not saying everything, but our team, the way fight for the every ball, every inch is in the ground. Oz is also there. Oh wow, this is something different. For every air ball, Abhishek Jadhav, Sunil Shetty, they are fighting. In second ball, for every second ball, Climax, NP Pradeep, Steven Dias, Nabi, defending line shape, we are looking at something different. In first 10-15 minutes, maybe we concede. But the way we play, the discipline, the attitude, and the aggression we show, and Australia team think, this is something different. They are not expecting we can fight like this. And they are very friendly. They respect us, and we also respect them. That was a exceptional good match. Absolutely. In fact, we
जितना में दो चांसेस हम लोग को हाफ चांस वी केम इनटू स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज आया था, सुनील के सामने फॉल किया था। ओनली होप 13 साल बाद सुनील रिमेंबर्स दैट मैच, ऑब्वियसली ही डज, कि इस बार स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज मिले तो बॉल तेकाटी के अंदर जानी चाहिए। हाफ टाइम टॉक क्या था? व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द प्लेयर्स व्हेन दे ऑल केम इन? आपको कोई प्लेयर स्पेसिफिकली कुछ बोला? बेंच, क्योंकि बेंच में हम लोग का दो सीनियर, बहुत सीनियर प्लेयर्स बैठे थे अनफॉर्चुनेट इंजरीज के चक्कर में, and obviously the coach. What was the halftime talk about? ऑनेस्टली स्पीकिंग दादा, वो मैच जितना आगे शुरू जब हुआ था तो मेरे क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था हम लोगों के ऊपर, तो हम लोग 90 मिनट्स में हो सकता है 85 मिनट्स या 80 मिनट्स या 75 मिनट डिफेंड ही किया हुआ। लेकिन हर एक सेव के बाद ना मेरा टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो बाहर आ रहा था, मुझे पता चल रहा था। गेम जितना मैच्योर्ड हुआ, अपना टीम का परफॉर्मेंस उतना मैच्योर्ड हुआ। हाफ टाइम में हम लोग 4-0 शायद डाउन था, लेकिन हाफ टाइम में जैसे जब पहला एंट्री किया तो बॉब सर फर्स्ट से टेक रेस्ट एंड फॉरगेट व्हाटएवर हैपेंड, वी हैव टू विन द सेकंड हाफ। The attitude, the first half is finished, we have to win the second half. The positive attitude, and he always talk positive, positive, positive. And I honestly say कि मेरा परफॉर्मेंस के वजह से मेरा टीम का भी जो फेथ था ना, वो मेरे ऊपर जो ट्रस्ट था वो दिखाई दे रहा था कि यस वी कैन डू। और मेरा एवरी सेव के साथ साथ और मेरा फुल टीम का जो डिफेंस था, उसका जो परफॉर्मेंस था, उसको देख के पूरा टीम बहुत बूस्ट अप हुआ था। और हम लोग सेकंड हाफ में बॉब सर का पेप टॉक जैसा बोलता था, छोटा छोटा स्मॉल थिंग्स, कि हम लोग पूरा दे जैसे ट्रेनिंग करते हैं उसी सेम चीज को करना है। और हम लोग सेकंड हाफ में ग्राउंड में गया और हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस किया, और सेकंड हाफ में शायद एक ही गोल कंसीड हुआ था। तो हम लोग का सेकंड हाफ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। और हाफ टाइम में बॉब सर का टॉक और अपना सीनियर प्लेयर बाईचू भाई था, रेड्डी भाई था, दीपक भाई, सब मेरे को बोला था कि तुम अच्छा किया, बट और अच्छा करना है अभी सेकंड हाफ में, और स्टे टुगेदर, जैसा हम लोग का बातचीत होता है। हम लोग का टीम का जो डिसिप्लिन था, डिफेंडिंग शेप, अटैकिंग शेप, पुश अप, पुश ओवर, दिस इज ऑल, सब सही करने के लिए बोल रहा था। बट हम लोग अच्छा खेला सेकंड हाफ में। पोस्ट मैच ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, कोई जर्सी एक्सचेंज क्या हुआ था? एनीथिंग यू रिमेम्बर नोटेबल? आप पोस्ट मैच तो मेरा टीम तो सभी आया था मिलने के लिए, सब आके मुझे बहुत अप्रिशिएट किया फॉर द भाई ग्रेट परफॉर्मेंस। बट ऑजीज टीम का भी ऑलमोस्ट ऑल प्लेयर्स आया था मेरे से हैंडशेक करने के लिए। बट और टीम का ही मे बी मोर देन 10 टाइम ही सेड, मैट यू मिस माय हैट्रिक। बट और मैं क्योंकि उस टाइम ये लोग सब इंग्लिश प्रीमियर लीग का प्लेयर था, टीम का हिल, मार्क्स रॉजर, एवरी वीकेंड पे हम लोग उन लोगों को देखता था कि यार आज उस टाइम में टीम का हिल था एवर्टन में, मार्क्स रॉजर, उसके बाद चेल्सी साइन किया था। एवरी सैटरडे संडे हम लोग जिसको देखते हैं ईपीएल में, हम लोग उसके साथ खेला। मैच खत्म होने के बाद देन आई फील अरे व्हाट, देन मैं कहाँ खेला, क्या खेला अभी, तब कुछ फीलिंग हुआ था। और मैं जब ग्राउंड से बाहर जा रहा था, बॉब सर आके मुझे हक किया और से वेल डन सन, दिस इज परफॉर्मेंस, दिस इज फुटबॉल। और बॉब सर के साथ जब हैंडशेक कर रहा था, देन आई सी मार्क्स रॉजर इज कमिंग एंड मार्क से टू बॉब, योर गोलकीपर इज आउटस्टैंडिंग, एंड ही आस्क्ड मी टू वांट टू एक्सचेंज योर जर्सी। एंड जनरली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कभी जर्सी एक्सचेंज करता नहीं हूँ लाइफ में, किया नहीं ये मेरा कुछ। बट जब उतना बड़ा प्लेयर मेरे से किया तो मैं, मेरा सेकंड थॉट आया नहीं, बोले यस आई रिमूव माय जर्सी एंड एक्सचेंज विद हिम। और ये बहुत ही बार, क्योंकि मार्क्स वर्जर इज ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोलकीपर, प्रीमियर लीग में भी आप देखोगे तो मोर देन 400 मैचेस ही प्लेड। सो उस लेवल का एक प्लेयर आके मेरे साथ जर्सी एक्सचेंज कर रहा है। बट ये अभी जब सोचता हूँ ना, ये थिंग्स इज वेरी वेरी बिग। उस टाइम में तो जर्सी बोला, मार्क्स वर्जर, मैच खेला, मैच का टेम्पो में सब हो गया। बट नाउ दिस जब सोचता हूँ, अरे ऑस्ट्रेलिया टीम, ये परफॉर्मेंस, टीम का हिल, ये मार्क्स वर्जर, now we think this is very very big, and we really enjoy the Asia Cup in 2011. डेफिनेटली। टीम गहल के साथ आपका बाद में भी बहुत सारे इंटरेक्शंस इंडियन सुपर लीग पे हुए थे, उस समय का क्या ये मैच और ये एशियन कप बार बार जिक्र आता था बातचीत में? बार बार नहीं, बट ट्रैवलिंग टाइम में, क्योंकि हम लोग का जमशेदपुर एफसी का ट्रैवलिंग बहुत लंबा होता था, क्योंकि हम लोग
जमशेदपुर टू रांची जाता था बाई बस 3 आवर्स, उसके बाद फ्लाइट में। तो ट्रैवलिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक ही साथ था। तो ट्रैवलिंग में ये एशिया कप का बात तो बहुत हुआ, बहुत होता था कि, और प्रैक्टिस में भी वो गोल करने के बाद, भाई मेट आई मिस दैट हैट्रिक, नाउ आई इक्वलाइज द हैट्रिक। ये पार्ट ऑफ द फन के लिए ही वो बोलता था, बट उस टाइम में हैट्रिक मिस किया तो अभी ये फुलफिल हो गया मेरा। चलो, बट इज अ वेरी नाइस, बहुत इतना बड़ा प्लेयर, इतना हम्बल, अरे व्हाट ए पर्सन इज। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग, यू कैन गो टू knock his door and he will come and support you. What a nice gentleman is Tim Cahill. Very, very, and I really learned lots of things from him, because in that level he played the highest level of the football, the English Premier League and World Cup. And that man is like, he didn't play anything. He's a very humble, down to earth. I learned a lot of things from him. He's helped me a lot, and he's a very nice friend of mine. We talk still sometimes. फ्रेंडशिप बरकरार रहे, क्योंकि दैट्स व्हाट मेक ग्रेट प्लेयर्स, ग्रेट इंडिविजुअल्स, Yes. इफ नॉट ऑन द फील्ड बट आल्सो ऑफ द फील्ड, एंड द लीगेसी व्हिच यू लीव बिहाइंड। क्योंकि आज के दिन पे भी 13 साल बाद में इंडिया ऑस्ट्रेलिया मींस एन ओशन अपार्ट, इतना दूर, इतने टाइम जोन के बाद भी हम लोग किसके बारे में कहाँ बात कर रहे? ऑब्वियसली उनकी फुटबॉलिंग एक्सप्लॉइट्स के बारे में, बट ऑल्सो अबाउट हिम बीइंग अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। Good luck to you, to all the Socceroos, and obviously Tim. God bless all of them, all of them. That's the message from the Indian football fraternity, we can say. Yeah. Subrato, we speak about the Australia match, we speak about the Bahrain match, but there was also a कोरिया रिपब्लिक, यानी कि साउथ कोरिया, जो कोरिया रिपब्लिक हम साउथ कोरिया बोलते हैं, उस मैच पे उस समय जीसुंग पार्क खेला था, and there was a very special guy, मैं remember, who made his debut in that match. Thori, any memories and the name of that guy who made his debut against India? In fact, अच्छा बताइए। Yes, I think सबको पता नहीं है आज का दिन में, आज जो एशिया का बेस्ट प्लेयर है लास्ट 3 years कंटिन्यूस, सोन, वो उस मैच में डेब्यू हुआ था, और उसने एक गोल भी किया था अनफॉर्चुनेटली, बट उसका बॉल मैंने सेव भी किया था। तो जब मैं ये सब वीडियोस देखता हूँ तो मेरा बेटा को बोलता हूँ, देखो ये सोन एक ही साथ, वो वीडियो मेरे पास है अभी भी, तो कोरिया का जो सोन का सेव्स है, तो बेटा को देखो, देखो बेटा, ये और ये अंकल और मैंने एक ही साथ खेला था एशिया कप में 2011 में। तो ये सब बातचीत होता रहता है और अच्छा लगता है जब ये सब सोचता हूँ, क्योंकि दादा मैं बोलता हूँ ऑस्ट्रेलिया टीम अच्छा था, बहुत ही अच्छा था उस टाइम में, बट साउथ कोरिया टीम ऑल्सो दे आर वेरी वेरी गुड। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस खेला है। इस इंटरनेशनल मैच ऑलवेज टफ, बट अगेंस्ट कोरिया इज प्लेइंग एनी एज कैटेगरी, इट्स 17, 19, 23 and senior. This is something different. We can handle everyone, but South Korean is very, 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 very good side. I like them always. इनफैक्ट सुब्रतो वीडियो के बारे में बोल रहे हैं, मैं छोटी सी एक जिक्र करना चाहता हूँ। आफ्टर द मॉर्निंग आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया मैच, आई वाज अ जर्नलिस्ट एट दैट टाइम इन न्यूज एक्स, तो हम लोग के पास पूरी मैच रिकॉर्डिंग था। मैं एक 12-13 मिनट का सुब्रतो का हाईलाइट्स पैकेज बनाया था जो हम लोग चलाए थे, एंड आई से टोल्ड सुब्रतो, उस समय व्हाट्सएप नहीं था कि मेल पे कि ये मैं आपको ले लीजिए, डाउन साइज करके मैं भेजा हूं, हाँ, फॉर हिम टू कीप ए मेमोरी, और जो पूरा मैच है वो जीमेल पे अटैच नहीं हो रहा था, बाद में मैं आपको दे दूंगा। एंड सुब्रतो सेड, दादा थैंक यू सो मच, बट मेरे पास ऑलरेडी मैच रिकॉर्डिंग है। 2011 में सुब्रतो पॉल वाज दैट मच प्रोफेशनल कि उनके पास मैच रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि रात को ही उसने अपने पास रख लिया था, फॉर ऑब्वियसली हिज ओन स्टडी मेथड्स। सोंग ह्योंग मिंग के बारे में और एक बात बोलना चाहता हूं, ही प्लेड अगेन, डेब्यूटेड अगेंस्ट इंडिया इन 2011। बहुत कम लोग जानता, ही ऑल्सो केम टू कोलकाता टू प्ले द AFC अंडर-16 फाइनल्स। ये सोंग ह्योंग मिंग खुद ही बताया था। 2015 एशियन कप में देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनके लिए कोरिया टीम बहुत पहले आ गया था। आई हैड टू होल्ड हिम ड्यू टू माय responsibilities and the job profile at that time. So at that time when we started chatting, आप कहाँ, where are you from, and then everything started Calcutta. I've been in Calcutta. मैं खेला हूं उधर, और वो मदर टेरेसा का वो मदर्स होम जाके उधर देखे, ही वेंट थ्रू द मैदान, और बहुत सारे बातचीत हुआ था। और लकीली उस बातचीत के लिए द कोच वाजंट कंप्लेनिंग दैट कोरिया रिपब्लिक हैड टू वेट a bit more in the sense क्योंकि वो लोग पहले आ गए थे। The press conference couldn't have, pre-match press conference couldn't have started ahead of the scheduled time. So Song Hyung Min सिर्फ debut नहीं, also came to Kolkata to play the AFC Under-16 finals.
ओके, ये मुझे पता नहीं था, बट ये तो दैट वाज इट। गुड। अच्छा सुब्रत, एक बात बोलो। हाँ, हम जानते हैं कि इसका जवाब आप क्या दोगे। जो 2011 की परफॉर्मेंस आपका, इज इट द ग्रेटेस्ट एवर परफॉर्मेंस बाय एन इंडियन गोलकीपर एट द इंटरनेशनल स्टेज एवर? अरे दादा, आप क्या पूछ, अरे ये तो नहीं हो सकता है कभी। मैं तो कभी ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे गोलकीपर प्रोड्यूस किया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप इंडिया में गोलकीपर देखोगे तो इसका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है इंटरनेशनल मैचेस में। इसमें कोई डाउट नहीं, आप किसी को भी ले लो, पीटर थंगरासार, बलाइदे एशियन गेम्स में खेला है, उसके बाद भास्कर गंगुली, तरुण बोस, देवाशीष मुखर्जी, हेमंत डोरा, संदीप नंदी, आप किसको छोड़ के किसका नाम लोगे, अतनुदा, तनु मायदा, मतलब बहुत सारे गोलकीपर्स हैं। और उसने एक से ब्रह्मानंद साहब, जिसका नाम मैं लिया नहीं, उसने बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो मैं सबको रिस्पेक्ट करके बोलता हूँ कि इन लोगों का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। मैं ऐसे, इसमें हो सकता है मेरा परफॉर्मेंस भी आ जाए, बट मैं कभी नहीं मानता हूँ कि ये इंडिया गोलकीपर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। बट मैं आशा करता हूँ कि आगे जो मैच है, जो एशिया कप का मैचेस है, इसमें जो भी गोलकीपर खेले, लाइक गुरप्रीत हो, अमरिंदर हो या विशाल कायत हो, इसका परफॉर्मेंस ऐसा हो कि हम लोग बोल सके कि यार दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ आवर इंडियन गोलकीपर। यही चाहता हूँ। आई न्यू ये आपकी तरफ से आंसर आएगा ऑब्वियसली। देखिए, एट द इंटरनेशनल स्टेज मैटर्स कि आप किस लेवल पे खेल रहे हो। दिस वाज द कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप सुब्रतो, दिस इज एंटायरली माय ओपिनियन। जिन लोगों का नाम लिया सभी को नतमस्तक होकर मैं नमन करता हूँ। मेरे लिए तीन चार इंडिविजुअल परफॉर्मेंस स्टैंड आउट करता है बहुत जल्दी। भास्कर गांगुली, व्हेन आई वाज द किड अगेंस्ट साउथ कोरिया एट द ईडन गार्डन्स, नेहरू कप, 2 पेनल्टी सेव था, 2-2 दैट मैच, अर्ली 80s। गुरप्रीत अगेंस्ट कतार, गुरप्रीत अगेंस्ट ईरान, अवे मैच, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन द कोच, हालांकि वो मैच भी हम लोग हारे थे। आई फील दैट वाज हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। एंड आपकी एक परफॉर्मेंस रहा था अगेंस्ट नेपाल। अगेंस्ट नेपाल, लोग बोलेगा नेपाल के खिलाफ, दैट मैच वाजंट टेलीकास्टेड। हम लोग के बॉक्स के अंदर ही नेपाल खेला, तो वी मैनेज टू होल्ड ऑन। दैट्स ओनली वन टाइम वी एंटर्ड द बॉक्स व्हेन सुनील 2-3 को लेके राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट करते करते गया, इवेंचुअली कुडंट हैव अ शॉट एट द गोल, उसको रिकवर करके डिफेंडर ने मार लिया था। दैट मैच आपका 6-7 ब्लाइंडर अगेन सेफ था। आपकी ताजिकिस्तान के साथ सेकेंड हाफ इन द एएफसी चैलेंज का फाइनल वाज एक्सीलेंट। लॉट मेनी अदर परफॉर्मेंस, शायद मुझे याद नहीं आ रहे बाकी गोलकीपर्स के बारे में, बट इफ यू आस्क मी, एट द कॉन्टिनेंटल लेवल अगेंस्ट दैट क्वालिटी ऑपोजिशन मैंने अभी तक नहीं देखा है। एंड ऑब्वियस ये नहीं कि ये नहीं हो सकता। सो फॉर मी इट स्टिल स्टैंड्स आउट, एंड आई बिलीव पीपल विल एग्री, बिकॉज आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है आपके साथ कौन खेल रहा है, किसके खिलाफ आप खेल रहे हो, और कौन सी लेवल पे खेल रहे हो। ऑब्वियसली इन ए ट्राई नेशन और एग्री। एशियन कप द परफॉर्मेंस मैटर्स, यू आर बीइंग मॉडेस्ट, बट ठीक है, ओके। लास्ट 2 क्वेश्चन सुब्रतो, आपकी मैच प्रिपरेशन पे मेडिटेशन कोई पार्ट या रोल प्ले करता है? कभी कभी किया है? ये हमेशा करता है, क्योंकि मैं योगा करता हूँ, करता था। अभी कम हो गया, बट प्लेइंग टाइम दिस इज कंपलसरी, कि मैं योगा करता था, उसमें मेडिटेशन था। और एक चीज था जो मैं चेस खेलता था मैच के दिन में। मैं ये प्रोफेशनल लाइफ में बहुत नहीं कर पाया, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैच के दिन में थोड़ा चेस खेलने के लिए, क्योंकि मैं एकेडमी डेज में, मैं चीता बोल के मेरा एक पार्टनर था, वो हम लोग बहुत चेस खेलता था मैच के दिन कंपलसरी। तो उसमें ब्रेन का कामनेस बहुत होता है। और प्रोफेशनल लाइफ में तो मेरा योगा कंपलसरी था। मॉर्निंग में कभी भी कैंप में भी होने से पहले, मैं ब्रेकफास्ट जाने से पहले मैं योगा करके ही जाता था। और मैच डे पे, और ऐसा नहीं कि मैच डे पे जाता, तो मैं सिंपल प्रोसेस, मतलब रूटीन ही था। मेरा डेली जो रूटीन था वही था मैच डे पे, योगा करना, ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद जिम में जाके थोड़ा जिम करना, फिर आके रेस्ट, लंच, रेस्ट, देन गो फॉर मैच, सिंपल। सुब्रतो, द बट लास्ट, योगा बहुत हेल्प करता। obviously meditation and yoga helps. The last question, Subroto, obviously we understand there can be butterflies in the stomach of many a player national team pe, as we take on Australia. आपकी मैसेज कितनी एंजॉय करनी चाहिए? You said it's possible to get out of the group. आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? I'm sure each one of the players, including your good old friend Sunil, would be looking forward कि आप सुब्रतो पॉल ने क्या बोला है। अरे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से मेनी मेनी गुड लक फॉर द मैचेस, एंजॉय योरसेल्फ। दिस 90 मिनट्स इज गोइंग टू बी योर लाइफ का सबसे अच्छा 90 मिनट्स होने वाला है।
और डोंट बी अफ्रेड, हम पूरा इंडिया आपके साथ है, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे. डोंट बी अफ्रेड एंड डोंट अफ्रेड टू ड्रीम बिग. वी कैन क्वालिफाई एंड यू गाइस कैन मेक द हिस्ट्री. You guys can make history. That comes from Subroto Paul. Thank you so much, Subroto, for this candid chat. Immensely grateful from this platform of Bol Dada Bol. Thank you so much, and obviously আবার দেখা হবে on Thank this you, platform. অবশ্যই দেখা হবে. And again, good luck to you and good luck to Indian team for the upcoming Asian Cup, and to all Indians, good luck. Thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram. Our coverage will continue on the platform of Bol Dada Bol. Do support us, subscribe, like, spread the word. Stay well, stay safe, and let's back the blue. Thank you. Bye-bye.